Yes, hello everyone. Before starting the solution for paper 2, let's discuss question 3 of paper 1. Earlier I made a calculation mistake in this question. Question 3 answer will be B, and that will be easy actually. Q charge was fixed here and this charge was displaced by angle phi here. This force will be kq square by 4r square, and this angle is going to be phi. So the component this side will be kq square by 4r square sine phi. That will be equal to mass into acceleration. kq by 4r square sine phi will be x by 2r. That is equal to mass and acceleration. So that is how we get a factor of 32. We are going to get a factor of 32 if you solve it. We will get a factor of 32. So in paper 1 physics, mark the correct answer for question number 3 as B. Fine. So now let's start with question number 1. So for question number 1, let's try to identify the point where the EMF induced will be 0. Right? So for that, let me draw the diagram of this at any instant. So the diagram will be like this, something like this. It will be at some place like this. So let's call this distance as x0. And so for that, what I will be doing today, you know that if anything moving element is there, this element 2, element 3, and this element 1 will be inside this, correct? All will be moving with the speed v. Right? So direction of polarity will be opposite. So when E2 plus E3 will become E1, we'll get a zero induced field. Correct? So to calculate that, what is the L effective for 2 and 3 elements? What you need to do for that? Let's assume यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटे? Let's assume this distance is x2. This will be x2. So what is the like this? This is element 2, and this length is x2, and this is x2. Correct, better? So what x2 will be, I can see here L effective for this element is x2, L effective for this is x2. What about effective length of 1? Effective length of 1 कितना आ जाएगा बेटे? यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, let me draw the diagram one more time, like this and this. This is our element 1, this is 2, and this is 3. So I am calling this length as x2. This is x2. So obviously this is going to be the x2 length. This will be x2 length, and this बीच वाला जो लेंथ हो जाएगा बेटे, टोटल लेंथ इसका हो जाएगा बेटे कितना? 2l/√3 आ जाएगा. तो ये लेंथ आ जाएगा बेटे 2l/√3 माइनस 4x2. तो इंड्यूस ईएमएफ के लिए क्या होना चाहिए बेटे? 2x2 should be equal to 2l/√3 minus 4x2. करेक्ट बेटे? इसको सोल्व करेंगे तो x2 is going to be l/3√3. Now x1 will be, x1 will have 12/√3 minus 4x2. So that will be 12/3√3. Now if I apply this is in this small circle, a triangle, sorry, this length will be what बेटे? x1/2, and this length is x0, and this is 30 degree. तो यहाँ पे हम लोग रख के कैलकुलेट करेंगे इसको, तो x0 आ जाएगा बेटे हमारे पास l/3. तो टोटल x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक? दैट इज l plus x0. When x is equal to l plus l/3, that is 4l/3, we will get a induced EMF as 0. तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बेटे A. Correct? Okay, now let's move to question number 2. Again, very good question. First, let's calculate what is the force because of this potential field. F is going to be minus of dV by du by dr. ना आ जाएगा बेटे यहाँ पे फोर्स हमारे पास आ रहा है. नेगेटिव का मतलब हो गया अट्रैक्टिव फोर्स. लेट्स टेक द मैग्नीट्यूड. That will be 3m alpha by r raised to power 4.
नाउ द टोटल सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा बेटे 3m अल्फा अपॉन r की पावर 4 तो हो ही है, प्लस ये भी लग रहा है हमारे पास gm बाई आर स्क्वायर भी हो गया, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे हमारे पास mv स्क्वायर बाई आर। करेक्ट। क्लियर बेटे बात सब? तो यहाँ पे क्या करते थे बेटे हम लोग, m चला गया हमारे पास, m कट हो गया बेटे, तो यहाँ से v स्क्वायर क्या लिख देंगे बेटे, v स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3 अल्फा बाय आर क्यूब प्लस जी एम बाय आर। Now let's try to calculate this that has been asked to us, t1 square minus t naught square by t1 square, ये क्या हो जाएगा बेटे 1 minus t naught square by t1 square हो जाएगा। t naught square को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटे, t is equal to 2 pi r by v होता है, if I use it, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटे 4 pi r naught square upon gm by r naught into 4 pi r naught square by v1 square। करेक्ट बेटे, ये आ जाएगा बिकॉज टी वन इज इक्वल टू आ जाएगा टू पाई आर नोट बाई वी वन, यहाँ पे इसको वी वन कर लीजिए आप लोग, और टी टू क्या रहेगा बेटे, टू टी टू तो वही टू पाई आर नोट बाई वी नोट रहेगा, सॉरी टी नोट, सो विल गेट दिस टर्म। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाती है बेटे, रूट ओवर ऑफ जी एम बाई आर नोट हो जाती है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तीनों चीज़ों को, तो वी आर गोइंग टू गेट दिस एक्सप्रेशन। इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम आर नोट बाई जी एम and v1 square. So let's substitute the value of v1 square here. We are going to get the answer as 3 alpha by gm r naught square. Question number 2 answer is A. Now let's move to question number 3. Now if v is not changing, potential is not changing, potential is constant, then cutoff wavelength will be constant, it will not change, right? So in the first case, ratio of k alpha, as we all know that SC by 1 by lambda is equal to Rydberg constant into z minus 1 का होल स्क्वायर रहेगा बेटे, ठीक है, और के अल्फा सीरीज है तो इट विल बी 1 माइनस 1 बाई 4। So now I need to take the ratio, r is the ratio of wavelength of k alpha line to the cutoff wavelength। तो यहाँ पे पहले वाले में क्या आ जाएगा बेटे, रेशियो r1 बाई r2 अगर हम लोग देखें बेटे तो ये आ जाएगा लेमडा 1 बाई कट ऑफ वेवलेंथ, सेकेंड वाले के लिए आ जाएगा बेटे लेमडा बाई कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ इज सेम, दैट इज लेमडा बाई लेमडा टू r1 बाई r2, तो r2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे 2 टाइम्स लेमडा 2 बाई लेमडा 1, ये हो जाएगा बेटे 2 टाइम्स लेमडा 2 विल बी बेटे 41 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन लेमडा 1 विल बी बेटे 46 माइनस 1 होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटे, ये न्यू रेशियो लेमडा 2 विल बी, ओ लेमडा 2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा क्योंकि ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बेटे 2 टाइम्स ऑफ 46 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 41 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटे 2 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 40 इंटू 40, ये हो जाएगा बेटे 2.53। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 is based upon the torque acting on the current carrying loop बेटे, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें बेटे लूप का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल हम लोग बनाएंगे, दिस इज द प्लेन ऑफ द लूप, अगर मैं इसको थीटा रोटेट कर देता हूँ बेटे यहाँ पे,
एंगल जो हो जाएगा बेटे एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का टोर्क आ गया बेटे एन आई ए बी साइन 90 माइनस थीटा, और एम जी का टोर्क आ जाएगा बेटे एम जी आर साइन थीटा। तो एन आई ए बी कॉस थीटा is equal to mgr sin theta. So the tan theta is going to be IAB upon mgr. ओके, एरिया को लिख देता हूँ मैं। इसका एरिया कितना हो जाए पाई आर स्क्वायर बी अपॉन एम जी आर। आर आर चला गया बेटे, हमारे पास क्या आ गया आई पाई आर बी बाय एम जी। करेक्ट, ए ऑप्शन आ जाएगा, फोर्थ का भी ए ऑप्शन। ऑल सिंगल करेक्ट इन पेपर 2 हैज ए आंसर। Now let's move to question number 5. Small electric dipole is given to us. अगर डायपोल को अगर अंदर रख देंगे बेटे, इफ आर इज लेस देन कैपिटल आर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, दैट मींस नो ऑसिलेशन, कोई ऑसिलेशन नहीं होगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। बी का देख लेते हैं। आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा बेटे, तो इफ आर इज वेरी मच ग्रेटर देन डायपोल का जो टू रे लेंथ है, देन क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा, इट विल परफॉर्म ऑसिलेशन, विल परफॉर्म ऑसिलेशन। कितना आ जाएगा बेटे ऑसिलेशन का फॉर्मूला, अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे टू आर लेकर करते हैं तो वही होता है हमारे पास पी ई अपॉन आई होता है बेटे, ये ओमेगा स्क्वायर होता है, तो आ जाएगा पी इंटू के क्यू बाय टू आर की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा बेटे 4r स्क्वायर अपॉन आई, दैट इज अवर ओमेगा। के को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटे सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर का रूट ओवर आ जाएगा। So I will be left with sigma p upon 4r स्क्वायर r। तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। डी ऑप्शन देखते हैं बेटे। डी ऑप्शन में क्या आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा सिग्मा टी नॉट अपॉन आई इंटू 4r स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा बेटे 10r का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिफ्थ में आंसर हो गया है ए एंड सॉरी बी एंड डी। नाउ लेट्स लुक इनटू क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखिए बेटे क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉयंसी ऊपर की तरफ लग रहा है, एमजी नीचे की तरफ है, ये हो जाएगा सिग्मा वी जी। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा होने वाला है एच डी, डी ले लेते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू डेप्थ डी इज 0.077। तो एफ नेट कितना आ रहा है बेटे यहाँ पे, एफ नेट हमारे पास आ जाएगा रो वी जी माइनस सिग्मा वी जी। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू गेट 11 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटे, स्लोली जा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स आएगा नहीं, चेंज फ्रिक्शन फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो वर्क डन हो जाएगा बेटे हमारे पास 11 इंटू 10⁻² इंटू 0.7, that will be 0.077. A option is correct. Let's check B option. If we neglect the viscous force in water, then the speed V is 7. तो विस्कस फोर्स हटाए दें तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स जब ऊपर की तरफ जा रहा है बेटे, वर्क डन कितना हो गया 11 इंटू 10⁻² इंटू डी इज अगेन 0.7, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बेटे। इसका एम कैलकुलेट करके हम लोग सोल्व करेंगे बेटे, तो आ जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। सो B इज करेक्ट। नाउ लेट्स लुक इनटू सी ऑप्शन। मैक्सिमम हटाया जाएगा बेटे v स्क्वायर बाय 2g, 49 बाय 2 इंटू 10, ऑब्वियसली दैट इज नॉट 1.4, गलत हो गया बेटे। डी ऑप्शन देखेंगे बेटे, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स,
एक्सक्लूडिंग दी विस्कस फोर्स, नेट फोर्स कितना आ रहा है बेटे हमारे पास 11 इंटू 10⁻²। इसका रेशियो लेना है हमको मैक्सिमम विस्कस फोर्स है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटे, विस्कस फोर्स इज वेरी स्मॉल, तो हम लोग मान के चलेंगे कि इसका फाइनल वेलोसिटी 7 ही रहेगा। there is hardly any change in the final velocity. So if I take this ratio, it comes out to be 500/9. So all these three options A, B, D are correct. Yes. Now let's move to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 अगेन रेडियस हमारे पास आ जाएगा बेटे mv/qb होता है। तो अगर यहाँ से निकल रहा है बेटे तो ये डिस्टेंस जो होनी चाहिए बेटे x की वैल्यू होनी चाहिए 2r। x will be 2r। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है बेटे एनर्जी हमको दिया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं E इंटू 192 इज इक्वल टू हाफ mv² या p²/2m लिख देंगे बेटे। p इज इक्वल टू आ जाएगा 2me192 का रूट ओवर। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटे हम लोग h प्लस साइन के लिए इसको करते हैं, तो h प्लस साइन के लिए आ जाएगा 2me192 डिवाइड बाय चार्ज 1 हो जाएगा बेटे मैग्नेटिक फील्ड। Charge will be 1.6 into 10⁻⁻19 and magnetic field is 0.1. If we solve this, I am going to get radius as h plus sin के लिए बेटा रेडियस आ जाएगा बेटा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। रेडियस आ जाएगा बेटा 2 सेंटीमीटर फॉर h प्लस, दैट मीन्स बेटे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली अगर हम लोग a की वैल्यू 144 डालेंगे बेटे, m को यहाँ पे लिख देंगे बेटे मास ऑफ प्रोटॉन इनटू a, तो वो दिया हुआ है यहाँ पे 144 डालेंगे बेटे तो हमारा आ रहा है कैलकुलेशन करके r की वैल्यू आ रही है बेटे 24। x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे कितना 48 आ जाएगा बेटे। these two options are correct here. Now let's check the C option। तो C ऑप्शन के लिए बेटे ये हो जाएगा इसका रूट 14 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास a की वैल्यू 196 है बेटे तो x की वैल्यू आ जा रही है 56, और अगर a की वैल्यू 1 है बेटे तो x की वैल्यू आ जा रही है 4। तो डिफरेंस विल बी x2 माइनस x1 माइनस x0 इज गोइंग टू बी व्हाट बेटे 52। ये हो गया गलत हमारा ऑप्शन। अब देखिए बेटे अगर इसको यहाँ से बाहर निकलना है तो मैग्नेटिक फील्ड का विड्थ क्या होना चाहिए बेटे, मैक्सिमम यहाँ से इसको टच करना चाहिए, तो विड्थ आर के इक्वल हो गए बेटे। तो आर हो गया mv/qb। अगर ये वैल्यूज रखता हूँ मैं यहाँ पे तो आर का वैल्यू आ रहा है बेटे यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बेटे। इट इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। दोनों को अलग अलग हम लोग मेजर कर रहे हैं तो दोनों में इंडिपेंडेंट एरर आएगी बेटे। वॉल्यूम लिख देता हूँ यहाँ पे 1/3 पाई r²h डेल्टा v/v इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा r/r प्लस डेल्टा h/h बेटे। तो ये आ जाएगा बेटे कितना, एज दोनों में डेल्टा आर सेम है और दोनों का मेजरमेंट भी सेम आ रहा है तो 3 टाइम्स इसको लिख देता हूँ बेटे डेल्टा r/r। तो ये आ जाएगा बेटे हमारे पास कितना 3%। 3% इज द आंसर। चलिए 9 की बात करते हैं अभी। So one of the particle is projected from here, another particle is projected from here, they are meeting somewhere here. So let's say this is x1 and this is x2 बेटे, this is theta and this is theta naught, this is v naught and this is v. So I can say x1 plus x2 is equal to L बेटे, that means v cos theta plus v naught cos theta naught is equal to L।
और दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम कर देंगे बेटे हम लोग। तो v नॉट साइन थीटा नॉट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट सॉरी v साइन थीटा माइनस हाफ जी टी। करेक्ट। सो लेट्स टेक केस वन। 45 अगर लेते हैं बेटे हम लोग, so if I take 45 डिग्री बेटे, तो आई एम गोइंग टू गेट v नॉट इज इक्वल टू v, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटे हम लोग, तो v प्लस ये हो जाएगा बेटे 2v 1/√2 इज इक्वल टू l। टाइम कितना लग गया बेटे इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में? t1 आ जाएगा बेटे v नॉट बाय रूट टू, सॉरी डिस्टेंस हो जाएगा बेटे तेरे पास इसमें रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो टाइम कितना आ जाएगा बेटे तेरे पास? ये आ जाएगा बेटे v नॉट बाय रूट टू इंटू 1/√2 प्लस v नॉट बाय रूट टू is equal to what बेटे L। so √2 v नॉट is equal to L। करेक्ट बेटे, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो कितना आ गया बेटे टाइम यहाँ पे t1। t1 इज गोइंग टू बी L/√2v। सिमिलरली t2 कैलकुलेशन कर लेते हैं। t2 के लिए आ जाएगा बेटे v नॉट, ये देखिए एंगल दिया हुआ है 60 और 30, v नॉट cos 60 प्लस v cos 30 इंटू t इज इक्वल टू, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी बेटे v नॉट साइन 60 माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू v साइन 30 माइनस हाफ जी टी। यहाँ से रिलेशन आ जाएगा बेटे इसमें v नॉट इज इक्वल टू √3v1v आ जाएगा। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा बेटे क्या, t2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटे √3l/2v। t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर हो जाएगा बेटे हमारे पास कितना हो जाएगा, √2/√3। आंसर √2। ठीक है बेटे। ओके, सम करेक्शन इज देयर, तो ये हो जाएगा 3v नॉट बेटे क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। इसको यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस इक्वेशन में, तो आ जाएगा बेटे हमारे पास क्या भी आ जाएगा, v नॉट प्लस 3v0/2 t2 is equal to L। So t2 is going to be what बेटे L/2v। Now if I take the ratio of t1 by t2 the whole square बेटे, it will be 1/√2 upon 1/2 का whole square बेटे। So we are going to get answer as 2। So question number 9 answer is 2। Let's move to question number 10। So 10 में we know that बेटे अगर हमारे पास कोई सर्कुलर फेस है और Q चार्ज रखा हुआ है बेटे यहाँ पे, and it is making angle थीटा बेटे, तो यहाँ से जो फ्लक्स जाने वाला है बेटे क्या हो जाता है, इस फेस से कंपेयर कर लेते हैं इसको हम लोग। This area comes out to be as 2 pi r square 1 minus cos theta। टोटल एरिया है 4 pi r स्क्वायर बेटे, तो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा 1 minus cos theta। दैट इज द फ्लक्स फ्रॉम दिस साइड एंड दैट इज द फ्लक्स फ्रॉम दिस साइड बेटे। तो कर्व सरफेस से जो फ्लक्स आएगा हमारे पास q by epsilon नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, दैट इज q by 2 epsilon नॉट 1 minus cos theta। तो क्या हो जाएगा बेटे ये q by 2 epsilon नॉट प्लस cos theta। करेक्ट बेटे।
फाइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे क्यू बाई टू करिए आप लोग, क्यू बाई टू एप्सिलॉन, इसका 2 टाइम्स करेंगे बेटे हम लोग, तो विल बी लेफ्ट विथ, ये हो जाएगा बेटे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। तो 5 1/5 क्या आ जाएगा बेटे तेरे पास, cos 30 by cos 60 आई गेस। 5 2 क्या आ जाएगा बेटे cos 60 by cos 30 5 1, तो दैट विल बी व्हाट बेटे 5 1/√3। तो n की वैल्यू आ गई बेटे तेरे पास 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ। तो यहाँ पे एंगल लेते हैं बेटे R3 और R4। ये एंगल हो गया बेटे R1 R2 एंड R1। सो एज यहाँ पे मिनिमम डेविएशन हो रहा है बेटे, तो आई कैन से कि R3 इज इक्वल टू R4, दैट इज इक्वल टू a/2, कितना हो जाएगा बेटे 30 डिग्री हो जाएगा ये, करेक्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं लगा दूँ बेटे, यहाँ पे I3 पता लग जाएगा मेरे को। I3 कितना आ जाएगा बेटे, साइन I3 इज गोइंग टू बी √3 टाइम साइन 30। I3 का वैल्यू आ गया बेटे मेरे पास 60 डिग्री, करेक्ट। तो I2 इज ऑल्सो 60 डिग्री, क्योंकि दोनों पे तो नॉर्मल कॉमन ही है, तो यहाँ पे नॉर्मल से वे बना रही, सेम एंगल यहाँ से भी बनेगा। तो R2 कितना आ जाएगा बेटे, फिर हमारे पास R2 आ जाएगा बेटे साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन 60 लगाएंगे हम लोग। R2 की वैल्यू आ रही है बेटे हमारे पास 45 डिग्री। R1 आ जाएगा बेटे 60 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो यहाँ पे स्नेल्स रूल लगा देते फाइनल, ए पॉइंट पे 1 साइन थीटा इज इक्वल टू √3/√2 साइन 15 डिग्री। तो क्या आ गया बेटे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ √3/2 साइन 15 डिग्री। तो पाई की टर्म में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री पाई की टर्म में हो जाएगा पाई/180 इंटू 15, पाई/12। 12 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं बेटे। 12 इज ऑल्सो इजी, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए कुछ लोग इसमें। देखिए पी पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, आर पे कम पोटेंशियल होगा, दोनों की वजह से। तो वायर का निकाल लेता हूँ बेटे पहले मैं। P2 R जा रहे हैं हम लोग, डेल्टा भी निकाल देता हूँ, जो है बेटे 2k λ/r इंटू डी आर हो जाएगा बेटे इंटीग्रेशन। और स्फेयर का क्या हो जाएगा बेटे, वायर का हो गया, स्फेयर का हो जाएगा बेटे k/r माइनस k/2r। दोनों को अगर यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ बेटे मैं इसकी 0.5 से 2, दोनों को ऐड कर देंगे बेटे, we get an answer of this is 45 degree, this is 45, and that is 126, sorry, this is, this one is 45 और ये आ रहा है हमारे पास 126। so total potential drop will be बेटे 171। चलिए now let's move to question number 12, sorry 13। 13 में आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटे, क्या इक्वेशन लग जाएगा देखिए। पहले प्रेशर हो गया बेटे P0 प्लस डेल्टा P1, और ये हो गया बेटे 4/3 πr3। फाइनल हो गया बेटे 8P0/27 प्लस डेल्टा P2 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, करेक्ट बेटे। तो यहाँ से कैपिटल आर बाई स्मॉल आर क्या आ जाएगा बेटे हमारे पास 8P0/27 प्लस डेल्टा P2 अपॉन P0 प्लस डेल्टा P1 रेस टू पावर वोट बेटे 1/3। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देते हैं बेटे, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 40/40 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो बेटे, तो आ जाएगा तेरे पास डेल्टा P2/डेल्टा P1 इज इक्वल टू, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे बेटे तो आ जाएगा 2/3
1 plus 9 by 8 delta P2 divided by 1 plus delta P1 by P0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, प्रोडक्ट वाली टर्म्स को हटा देंगे हम लोग, विल बी लेफ्ट विद डेल्टा P2 as 2 by 3 डेल्टा P1. डेल्टा P1 डेल्टा P2 0 हो जाएगा बेटे, तो कितना आ गया बेटे 2 by 3 into 144, that will come out to be 96. क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए बेटे। पोजीशन ऑफ एट मैक्सिमा क्या आ जाएगा बेटे तेरे पास, 8 लैम्डा डी बाई स्मॉल टी आ जाएगा बेटे। पहले पार्ट में निकालना है हमको द सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस। तो एक एक्सट्रीम पोजीशन बनेगी बेटे तेरे पास जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और दूसरा एक्सट्रीम आएगा बेटे जब इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। तो सेपरेशन आ गया बेटे तेरे पास y2 माइनस y1 है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा बेटे 8 लैम्डा डी बाय 0.8 स्क्वायर माइनस 0.04 स्क्वायर 2 times 0.04. Now I can neglect this term, तो y2 minus y1 हमारे पास आ जाता है 600 micrometer. For second part we need to find the maximum speed of this eighth bright fringe. तो स्पीड के लिए क्या करें बेटे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग, तो स्पीड आ जाएगा बेटे हमारे पास dy by dt, so that will be coming as 8 lambda d by 0.8 plus 0.04 sin omega t whole square into ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कर देते हैं बेटे हम लोग, मैक्स के लिए कॉस ओमेगा टी को 1 कर देते हैं बेटे, अगेन इसको नेगलेक्ट कर देंगे हम लोग इस टर्म को, तो वेलोसिटी आ जा रहा है बेटे मैक्सिमम हमारे पास सॉल्व करके 24 240 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर पर सेकेंड, so that will be 24 micrometer per second. That is answer for question number 15.